This session is being recorded, and this session is especially being recorded for those students who are willing to start their IELTS preparation from next week or from after after a few days they are willing to start preparation, or they are starting preparation from the very first day or from today. So I'm going to guide you about IELTS paper pattern study plan, that how you should start IELTS preparation. The first module, which is the most easiest one in IELTS, that's listening. In IELTS listening, you spend 30 minutes in your examination hall and you will listen for 28 minutes. And then you will have 2 minutes to check your answers. Then Allah Hafiz. But if you are appearing, as you know, that last time I'm saying this, if you are appearing in paper-based IELTS, then you will have extra time. You will have 10 minutes extra for transferring your answers into your answer sheet. 30 minutes you will spend listening, and 10 minutes you will spend transferring your answers. You can change your answers in 10 minutes. They are very important 10 minutes. And that's because of these 10 minutes, I always recommend students paper-based IELTS. But now, this paper-based IELTS is gonna be no more after 8th of March. So I am gonna guide you, advise you that how you should attempt your IELTS on computer. That's not very challenging. The part which is challenging is your typing. If you are not good at typing, I will advise you start practicing from today. And you can practice this easily in your online class because you will be answering me in chat box. So when you are typing, try to try to type the correct spelling, and try to take my online classes on laptop, because that will be very much ideal for you, because you will be typing on keyboard. See whether you can type within a given time or not. So online classes will help you to improve your typing speed. That's a beneficial for you. In IELTS listening, you have four parts: part one, part two, part three, and part four. सर तैयारी कहाँ से शुरू करें? अगर आप मेरी बात को बहुत मानते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अपना टाइम फ्रेम सेट कर लें। एक हफ्ते में पार्ट वन पार्ट फोर की तैयारी को मुकम्मल किया जा सकता है, एक हफ्ते में। और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ये भी मैं आपको बता दूं। मेरी हर बात आप आज के सेशन में नोट कीजिएगा, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें, अपने वक्त को जाया ना करें। और मैं आपके वक्त को जाया होने से कैसे बचाऊंगा, आज के सेशन के बाद या भी सेशन के साथ साथ मैं आपको बुक 11 से लेकर, आपको किताबें तो शायद आपके ने खरीद ली हो, मैं बुक 11 से लेकर 19 तक पार्ट वन के लिंक्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा, ये टोटल पता है कितने आपको इसमें टाइम चाहिए? 4.5, यानी कि 4.5 घंटे। इसी तरह से पार्ट फोर में भी आपको कितना टाइम चाहिए? 4.5 घंटे। यानी कि आप 9 आवर्स के अंदर पार्ट वन और पार्ट फोर की प्रैक्टिस को मुकम्मल कर सकते हैं। एक दफा मेरे सेशन को आप मंडे को ज्वाइन कर लीजिए, टिप्स एंड ट्रिक्स को समझ लीजिए कि पार्ट वन और पार्ट फोर की टिप्स क्या होती हैं, ट्रिक्स क्या होती हैं, उसके पीछे कौन सी साइंस है। एक दफा समझ लिया, अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दीजिए। और कितने दिन में मुकम्मल कर लें, मैंने आपको टारगेट दिया है, टारगेट सेट कर लें 4.5 आवर्स। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। देखो, तुम अगर इसको, मैंने एक हफ्ते का टारगेट दिया तो एक हफ्ते, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटा निकाल लो। 1 घंटा भी निकाला तो 7 आवर्स तो मिल गए ना तुम्हें। तुम्हें 9 आवर्स निकालने, तो चलो 1.5 घंटा कर लो। अगर तुमने रोजाना 1.5 घंटा लिसनिंग पार्ट वन और पार्ट फोर के लिए निकाल लिया, तुम एक हफ्ते में इन दो पार्ट्स को साइड में कर दो। उसकी वजह बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बेटा अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त तुम निकालोगे इन दो पार्ट्स में।
ये दो पार्ट्स तुम्हें रुलाएंगे, यहाँ तुम्हारे आंसू आएंगे, निकलेंगे, चीखें निकलेंगी। तुमसे एमसीक्यूज नहीं हो रहे होंगे, तुमसे मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल नहीं हो रहा होगा। और ये पेपर में 20 नंबर का सवाल आते हैं दोनों, और इसमें से बच्चे मार्क्स लेते हैं 5। दैट्स वाई लिसनिंग इज चैलेंजिंग। पार्ट 1 और पार्ट 4 की प्रॉब्लम क्या है? पार्ट 1 और पार्ट 4 की जो प्रॉब्लम है वो स्पेलिंग्स है। आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, एक दो ऐसे भी आते हैं जिसमें वो जो आप मिस कर जाते हैं। तो लेकिन अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करें तो आप 20 आउट ऑफ 20 यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं तो वो पार्ट 1 और पार्ट 4 में, क्योंकि ये फिलिंदा ब्लैंक्स होती है। अच्छा, मैं देखो, पार्ट 2 और पार्ट 3 मेरी नजर में आसान है। पूछो क्यों? पूछ लो। क्यों सर? बोल दो, मुझे आवाज आ जाती है, मैं पहुंचा हुआ आदमी हूँ। जी सर, क्यों सर? इसलिए देखो, इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पेपर पे लिखा हुआ होता है, तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है। यहां ब्लैंक से तुम्हें सुनकर ही लिखना है, वर्ड सुनोगे तो लिखोगे, लेकिन यहां पर तो जवाब तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। देखो, क्या मतलब सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये आपकी बुक 11 to 19 मेरे पास कंपाइल्ड मौजूद है। अभी सेशन खत्म होने से पहले पहले आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएगी। मटेरियल का मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको दे दूंगा, तो मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन आप ना लें। ये देखिए, अब आपके पास ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के दीदार करें, ये बुक 19 है, फिलिंदा ब्लैंक्स आ रही देखो। मुझे लोग कहते हैं पार्ट 1 सबसे आसान है, मैं कहता हूँ पार्ट 1 मुश्किल भी है, क्योंकि पार्ट 1 का जवाब तो सुनकर ही लिखना है। पार्ट 1 का जवाब सुनोगे तो लिखोगे, एक ही पैटर्न पे होते हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स, फिलिंदा ब्लैंक्स, फिलिंदा ब्लैंक्स, फिलिंदा ब्लैंक्स, फिलिंदा ब्लैंक्स, फिलिंदा ब्लैंक्स, फिलिंदा ब्लैंक्स। ये पूरा पार्ट 1 एक ही पैटर्न पे चलता हुआ जा रहा है। बुक 11 to 19 मैंने कंपाइल कर दी। अच्छा, पार्ट 2 है मुश्किल, लेकिन इसमें एक आसान बात है भाई, देखो जवाब तो सामने ही लिखा हुआ है, ABC में से कोई एक ही जवाब है ना। तो इसमें तो आपकी सुनने, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है योर अंडरस्टैंडिंग। पार्ट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? योर फोकस। लिख लो अपने पास, ये बातें आपको यूट्यूब पर नहीं मिलती हैं। पार्ट 1 फोकस, आपने फोकस रखना होता है। अगर आपका फोकस थोड़ा सा भी आउट हुआ, वो वर्ड निकल गया, थैंक यू वेरी मच, 0। पार्ट 2 के अंदर फोकस तो है आपका, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंड करना है उसके स्टेटमेंट को, वो क्या पूछ रहा है आपसे। अच्छा सर, पार्ट 1 में भी आपने कहा फिलिंदा ब्लैंक्स है, पार्ट 4 में भी आपने कहा फिलिंदा ब्लैंक्स है, सर दोनों में फिलिंदा ब्लैंक्स तो डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपके जहन में आ रहा है। सर दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? अगर पार्ट 1 के अंदर भी आप कहते हैं कि फिलिंदा ब्लैंक्स है और पार्ट 4 में भी, तो डिफरेंस कहाँ पर आता है? तो डिफरेंस बेटा यहाँ पर आता है, जब आप पार्ट 4 को सुनेंगे तो इट्स अ मोनोलॉग। मोनोलॉग समझते हैं? इट मींस आपको सिर्फ एक आवाज सुनाई दी जाएगी, और आप कहीं रुकेगा नहीं, बोलेगा यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 31 to 40। आ गई बात समझ? और वहां कहता है जब आप पार्ट 1 में जाएंगे, वो कहेगा यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है कि आप 1 to 5 पहले करें, फिर 6 to 10 करें। लेकिन पार्ट 4 में ऐसा नहीं होता। पार्ट 4 में कहते हैं पूरा पेपर देख लो। पहला डिफरेंस समझ आया? पार्ट 1 इज अ कॉन्वर्सेशन, दो लोगों की बातचीत होती है, पार्ट 4 इज अ मोनोलॉग। अच्छा, अब एक और डिफरेंस, पार्ट 1 इज एक्चुअली अ सोशल कॉन्वर्सेशन, पार्ट 4 इज एन एजुकेशनल लेक्चर। लेकिन मुझे फिर सब पार्ट 1 और पार्ट 4 में से ज्यादा आसान कौन सा है? मुझे दोनों ही आसान लगते हैं, लेकिन ज्यादा आसान मुझे जो लगता है वो पार्ट 4 है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, 2 या 3 बस, और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। आप मंडे का मेरा जो मास्टर क्लास है उसको अटेंड कीजिए। मेरा पार्ट 1 और पार्ट 4 में मंडे को डिस्कस करता हूँ। आपने उस सेशन को अटेंड कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दें। एक हफ्ते के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 4 की तैयारी मुकम्मल आपका। फिर उसके बाद सिर्फ राउंड्स चलाते रहे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, यानी कि एक दफा आपने मुकम्मल कर ली, फिर दोबारा आप उसको फॉलो कर लें, फिर मॉक टेस्ट की तरफ चले जाए आप।
फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, लेकिन आपका सेकंड और थर्ड वीक गुजरता है फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 पर। पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि आपको वहां पर आपकी वोकैबुलरी शॉर्ट हो जाती है। आपकी जब वोकैबुलरी शॉर्ट हो जाती है तो आप एमसीक्यूज नहीं कर पा रहे होते। आइए पार्ट 2, सर पार्ट 2 में क्या आता है? पार्ट 2 के अंदर चलते हैं। पार्ट 2 के अंदर आपके पास 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल देखें, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में एमसीक्यूज आते हैं, मैप आएगा। एमसीक्यूज आ गए सिर्फ, एमसीक्यूज और मैचिंग इंफॉर्मेशन। एमसीक्यूज, मैचिंग इंफॉर्मेशन, एमसी, ये वाला पेपर देखो, तीनों तीन तरह के सवाल हैं। एमसीक्यूज विद 2 पॉसिबल आंसर्स, मैचिंग इंफॉर्मेशन, एमसीक्यूज विद 1 आंसर्स। यहां पर देखें, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज विद 2 पॉसिबल आंसर, मैचिंग, ये 3 सवाल है। मैं कहता हूं 2 है, एमसीक्यूज और मैचिंग इंफॉर्मेशन। और एक सवाल जो कभी कभी आता है वो है मैप, जिसको मैं अलग से रिकॉर्ड करवाता हूँ। कमिंग सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्लास आती है मेरी, मैं मैप अलग से पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ 2 सवाल को फोकस करता हूँ, नोट कर लें। ट्यूसडे को आती है मेरी क्लास, मैचिंग इन्फॉर्मेशन और एमसीक्यूज। एक हफ्ते मैचिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, एक हफ्ते एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा, और फिर आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। बुक 11 to 19 आपको प्रैक्टिस करनी है। सर दोनों में एमसीक्यूज आ रहे हैं, पार्ट 2 में भी पार्ट 3 में, डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मैचिंग इन्फो, ये लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई फर्क नहीं है। एमसीक्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। पार्ट 2 के एमसीक्यूज देखो जरा, देखो, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, इधर देखो 1923, 1924, 19, एक एक वर्ड, 2 वर्ड, फ्रेजेस आ रहे हैं, लॉन्ग क्यूइंग टाइम्स, फूड विल, कभी कभार सेंटेंस भी है, अ प्राइवेट होम। लेकिन पार्ट 3 के अगर आप एमसीक्यूज पे नजर डालें तो वो काफी सेहतमंद होते हैं। ये देखो, काफी सेहतमंद होते हैं, यहाँ पर ज्यादातर जो आएंगे, ये देखो, पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, पार्ट 2 इज अ मोनोलॉग, पार्ट 3 इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल। पार्ट 2 के एमसीक्यूज की एक बहुत बड़ी क्वालिटी बता रहा हूं, जो अक्सर आप बच्चे कभी इस बात को फोकस नहीं करते। जब आप पार्ट 2 के एमसीक्यूज को सुनेंगे ना, तो ये बात याद रखिएगा, जो कुछ ABCD में लिखा हुआ होगा वो सब कुछ सुनाई दिया जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस बता रहा हूं। अब बच्चा यहाँ गलती कहाँ करता है? बच्चा सिर्फ ये देख रहा होता है वो क्या बोलता है। तो बेटा जब आप पार्ट 2 की प्रैक्टिस करेंगे, तो पार्ट 2 की प्रैक्टिस में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ बोल रहा है, ABC। तो बच्चा सोचने में मजबूर हो जाता है, मैं क्या लिखूं, उसने तो सब बोल दिया, फैक्ट्री भी बोला है, पार्क भी बोला है, ट्रिप भी बोला है, रिवर भी बोला है, मैं क्या लिखूं। ये पार्ट 2 की प्रॉब्लम है। अच्छा, पार्ट 3 की प्रॉब्लम क्या है? पार्ट 3 के अंदर जो कुछ आपको नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपने सवाल पर, ABC, वो कुछ बोलेगा ही नहीं। हकीकत बता रहा हूं, यहां पर जो कुछ लिखा हुआ है उसमें तो कुछ नहीं बोलेगा। और मैं ये भी बता दूं, जो वो बोलेगा वो भी आंसर का नहीं होगा। तो बच्चा ये सोचता है मैं क्या लिखूं, या तो इसने कुछ बोला ही नहीं। पार्ट 2 में क्या कहता है, इसने तो सब कुछ बोल दिया, मैं क्या लिखूं। यहाँ पर तो उसने कुछ बोला ही नहीं, मैं क्या लिखूं। तो ये है एमसीक्यू, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट होता है पार्ट 2 और पार्ट 3 में, वो एमसीक्यूज है, मैंने अभी बता दिया। मेरा ट्यूसडे को जो सेशन है वो है ही एमसीक्यूज के ऊपर। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बतानी है, बस वो फॉलो कर लेना, तुम्हारा एमसीक्यूज का मसला हल हो जाएगा। लेकिन एक मसला और होता है, वो होता है आपकी वोकैबुलरी का मसला। क्योंकि एमसीक्यूज में पार्ट 3 के अंदर सबसे ज्यादा वोकैबुलरी का काम है। आपकी वोकैबुलरी कमजोर है, आप एमसीक्यूज करने में आपको बहुत तकलीफ होगी। आप कहेंगे सर यहाँ तो कुछ बोल ही नहीं रहा, वो जो लिखा हुआ है ही नहीं कुछ, ऐसा ही होता है। आ गई बात समझ? पेपर का पैटर्न समझ आ गया? मैं वापस चलता हूँ अपनी मेन स्लाइड की तरफ। हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। प्रॉब्लम पार्ट 1 और पार्ट 4 की मैंने बता दी है, स्पेलिंग्स है, उसका सॉल्यूशन डिक्टेशन दो अपना। वो कैब दूसरा पार्ट 2 और पार्ट 3 की प्रॉब्लम मैंने बता दी है, वोकैबुलरी है। तो उसके लिए आपके पास ऑडियो स्क्रिप्ट होना चाहिए। मैं भी आपकी मास्टर क्लास का जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर आपके पास सारी ये डिटेल्स आ जाएंगी अभी थोड़ी देर बाद। एक एक कंप्लेन जो और स्टूडेंट कर रहा होता है वो क्या होता है, सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। तो देखो, समझ नहीं आ रही है ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है बेटा।
आप अभी आदी नहीं है। जिस दिन आप आदी हो जाएंगे उस दिन ये मसला आपका खत्म हो जाएगा। सिर्फ आदत की बात है, अपने आप को आदी बनाना है सुनने का। और ये देखो, एक बात, एक मैकेनिज्म सेट कर लो। अगर तुम, जरा नोट कर लेना बेटा, ये बातें लिखी हुई नहीं है। सर मेरे पास 4 हफ्ते हैं, मैं तैयारी कैसे करूं? 4 हफ्ते वाले सुन ले बेटा। जिनके पास 4 हफ्ते हैं वो लिसनिंग को रोज आना, 4 वीक्स वाले, वो लिसनिंग को रोज आना 90 मिनट्स देंगे। तो वो 2 हफ्ते में अपने टारगेट्स, 3 हफ्ते में टारगेट्स अचीव कर लेंगे। जिनके पास 6 वीक्स है वो रोज आना 60 मिनट्स देंगे। और कोई नागा नहीं, कोई गैप नहीं, सैटरडे संडे नो हॉलीडे। जिनके पास 8 वीक्स है वो रोज आना 30 मिनट्स, नॉट लेस देन दिस। ये आप अपने पास नोट कर लें। अब आप फैसला कर लें कि आपके पास 4 हफ्ते हैं, 6 हफ्ते हैं, 8 हफ्ते हैं। आप किस वीक्स, कितने वीक्स के प्लान के साथ चलेंगे? जितना आपके पास टाइम कम होता है आपकी प्रैक्टिस टाइम उतना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए। मैंने कहा है मंडे टू सैटरडे, एक मॉक टेस्ट संडे को दिया करो, देखा करो तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एक मॉक टेस्ट हफ्ते में देना काफी होता है, रोजाना मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा मैंने नहीं देखा। मैंने 21 साल हो गए, मैंने सारे तजर्बे आइल्स प्रिपरेशन पे किए हुए हैं। हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वेदर यू आर कैपेबल टू स्कोर 8 बैंड और नॉट। ठीक है, मैंने लिसनिंग की बुक 11 to 19 की जो बुक है कंपाइल्ड, वो आपसे शेयर कर दी है। आप आज चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, अगर आप अपनी तैयारी को गो ऑन करना चाह रहे हैं। आप बुक्स खरीदना चाह रहे हैं, आप बुक्स खरीद लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरी जो किताबें कंपाइल्ड होती हैं उसका एक फायदा ये होता है कि मैंने चीजों को आसान कर दिया। देखिएगा, पहले पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा, फिर पार्ट 3 होगा। इस तरह से मैंने सारी चीजों को कंपाइल कर दिया है। फिर आपको चाहिए होती है सर हमें ऑडियोज कहाँ से मिलेंगी, तो बस आप मांगे, आपको हर चीज हमारे प्लेटफॉर्म से मिल जाती है। मैंने आपके लिए सारी ऑडियोज को एक जगह कंपाइल कर दिया है। और चेक कर लें, आपके व्हाट्सएप के ऊपर वो रिसीव हो गई है, ताकि आप लोग बुक 11 से लेकर बुक 19, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, हर चीज आपको मैं हलवा बनाकर दे दिया। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को सुनने के बाद। सर आप क्लासेस कब लेते हैं? मेरी क्लासेस का पैटर्न सुन लीजिएगा। मेरी क्लासेस का पैटर्न, मैं पढ़ाऊंगा मंडे और ट्यूसडे। मंडे को मेरा पार्ट 1 और पार्ट 4 होता है, ट्यूसडे को पार्ट 2 और पार्ट 3, सैटरडे को या संडे को मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ। 12 डेज का स्टडी प्लान, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाती है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 12 डेज का स्टडी प्लान आ जाता है। और स्टडी प्लान क्या होता है? ये जो बुक 11 to 19 है, मैंने इसको 12 दिन में डिवाइड कर दिया है। और वो 12 दिन में कैसे डिवाइड किया, अभी मैंने आपको बताया था, 4.5 घंटे, 9 और 9 18। यानी कि बुक 11 और बुक से लेकर 19 तक अगर तुम प्ले करो तो 18 घंटे लगेंगे। अब तुम चाहो तो इन 18 घंटों को 12 दिन में सुनो या 18 दिन में सुनो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहता हूं देखो, अगर 8 हफ्तों की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो सेल्फ स्टडी प्लान को फॉलो करो। 4 दफा अपने राउंड्स मुकम्मल करो। 12 डेज के अंदर समझ लो तुम्हारे पास 12 दिन है तैयारी के। ये मत सोचो 8 हफ्ते, बोलो देखो 12 दिन है सर, आप सेल्फ स्टडी प्लान दे, मैं फॉलो करूंगी। मैं रोजाना 1.5 घंटा स्पेंड कर लूंगी। अब 1.5 घंटा नहीं है तो बस ठीक है, ये 18 घंटे तुम्हारे हो जाएंगे, फिर लगा लो 18 18। उसके बाद 9 और ऐड कर लो, तकरीबन 40 45 डेज में तुम इसको अचीव करोगे। ठीक है, मैंने आपको लिंक्स फॉरवर्ड कर दिए हैं। कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें कि अगर तो आपके पास, अगर आप 2 मॉड्यूल्स की तैयारी को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आप लिसनिंग पे काम किया करें। अगर आप 1.5 घंटा आपके पास है तो आप लिसनिंग को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर सकते हैं। आप चारों मॉड्यूल्स को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। स्पीकिंग में तो आप लाइव, आपको जूम ऐप के ऊपर ही आना पड़ेगा, लेकिन लिसनिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको घर पे टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं तो आपको अपने लाइव सेशंस के अंदर गाइडलाइंस देता हूँ, समझाता हूँ,
लेकिन प्रैक्टिस इज द की। और याद रखो, जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, तुम अपने peep in your collar that you have practiced 36 tests before this IELTS exam. अगर आपने 36 फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस की है, अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तुम अपना स्कोर देख लेना, तुम्हारा स्कोर 7+ होगा। लेकिन तुमने 36 टेस्ट नहीं किए प्रैक्टिस, तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। 2-4 टेस्ट बच्चा फुल सुनता है, उसके बाद कहता है हाँ हो गई तैयारी, फिर कहते हैं मेरा स्कोर क्यों नहीं आया। मैं कहता हूँ अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानते हुए बताओ, तुमने कितने टेस्ट की प्रैक्टिस की थी। क्योंकि जो बच्चा 8 बैंड लेकर आ रहा है, उस बच्चे का रिव्यू ये आता है, सर आई हैव प्रैक्टिस मोर देन 36 टेस्ट। आपने तो बुक 11 to 19, मैंने सर बुक 9, 8, 9, 10 भी उठा ली थी। ये होती है प्रैक्टिस। लेकिन हम बस परेशान, कंप्लेन ज्यादा करते हैं, शिकायत ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। प्रैक्टिस करनी है, ये बात जहन में रखें। प्रैक्टिस आपको लेकर जाता है लिसनिंग के अंदर, आपका स्कोर बेहतर होता है। और अपने साथ एक स्टॉप वॉच रखनी है, अपने साथ एक बुक बना लें, अपना एक नोटबुक, जिसमें आप अपना स्कोर लिखा करें। मैंने ये स्कोर किया आज डे 1 प्रैक्टिस करी, स्कोर क्या आया, डे 2 को क्या आया, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8। रजिस्टर में बना दो अपने डेज कि आज मेरा डे 1 है, मैंने आज क्या किया। अपना एक पूरा एक रजिस्टर मेंटेन करो। डे 1 को मैंने लिसनिंग में क्या किया, रीडिंग में क्या किया, स्पीकिंग में क्या किया, राइटिंग में क्या किया। हर रोज तुम्हें अपना एक प्लान फॉलो करना है। ठीक है, आगे चलिए, अब शुरू करते हैं रीडिंग।